नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। माई सेल्फ जेवियन डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, प्रोग्राम BA B.Ed, 3rd सेमेस्टर, ज्योति विद्यापीठ, वीमेंस यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान। Students, today we will discuss topic nature, characteristics of administrative institutions in democratic socialist society. First of all, English, then Hindi. The nature of administrative institutions in a democratic socialist society can be seen as following points. First is, administrative institutions have an impact on the political environment. The administrative institutions of any country are influenced by the political environment of that country. Parliamentary and presidential government has different forms. In a country with a presidential system such as the US, there is more separation in the administrative and executive than in the parliamentary countries. In the US, the executive is not created out of the administrative. This is the central point of the presidential system. Whereas in a parliamentary government system, the executive is selected by the leader of the majority party from the administrator elected by the party. Second point is effect of political parties on administrative institutions. Political thinkers consider political parties as the fourth body of government. Political parties do not have a direct contribution in the formation of government, but they also have a role in the functioning of administrative institutions. The work of blood circulation by political parties in the administration of countries of democracy. Third is effect of non-political organizations on administrative institutions. In all democratic countries, pressure group and other voluntary organizations influence the functioning of administrative institutions. Fourth point is multi-level organization of administrative institutions. In a democratic socialist country like India, federal government has been adopted. Multi-level administration is found here. Central administration first, second is state administration, and third is local administration. And fifth point is effect of public opinion on administrative institutions. In a democratic society, the administration system is more concerned about public opinion. It is sensitive to the interest of the public. The administrative system is not able to ignore the public. Due to the pressure of public opinion, they sometimes have to change their policies. Sixth point is policy formulation and implementation.
In democratic socialist society, the policies are implemented by the administrative institutions, but they also play an important role in the formulation of policies. And seventh point is the bureaucracy or officers continues to have an important role. In democratic socialist society, the responsibility of welfare works rests on the bureaucracy. All work is done by them, so it plays its important role in the society. And eighth point is administrative institutions have a positive role. In democratic socialist societies, administrative institutions are an instrument of social change or medium of social change, right? It establishes social justice. This session prepared by 2.0 digital version Jyoti Vidyapeeth Women's University. If you have any comment, please. अब हम बात करते हैं हिंदी में इस सेशन पर। एक लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाओं की प्रकृति या विशेषताएं, ठीक है, आज का हमारा सेशन है। अब देखिए, इन्हें हम कुछ बिंदुओं या पॉइंट्स के माध्यम से समझ सकते हैं। जिसमें पहला है, प्रशासनिक संस्थाओं पर राजनीतिक पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। किसी भी देश की प्रशासनिक संस्थाएं उस देश के राजनीतिक परिवेश से प्रभावित होती हैं। संसदीय और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में अलग अलग स्वरूप होता है। अमेरिका जैसे अध्यक्षीय प्रणाली वाले देश में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में संसदीय देशों की तुलना में अधिक पृथक्करण पाया जाता है, ठीक है, सेपरेशन होता है, विभाजन पाया जाता है। अमेरिका में कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से नहीं होता है, इसलिए वो व्यवस्थापिका जो है रेस्पॉन्सिबल या जवाबदेह भी नहीं होती है। यहाँ राष्ट्रपति शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु होता है, ठीक है, मेन पॉइंट। जबकि संसदीय शासन व्यवस्था में जनता द्वारा निर्वाचित व्यवस्थापिका में से बहुमत दल के नेता द्वारा कार्यपालिका का चयन होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय व्यवस्था है, यहाँ पर क्या होगा कि जो कार्यपालिका वो संसद के प्रति रेस्पॉन्सिबल होगी या जवाबदेह होगी। दूसरा पॉइंट है प्रशासनिक संस्थाओं पर राजनीतिक दलों का प्रभाव। राजनीतिक विचारक राजनीतिक दलों को सरकार का चौथा निकाय मानते हैं, ठीक है, फोर्थ ऑर्गन या चौथा निकाय। राजनीतिक दलों का सरकार के गठन में प्रत्यक्ष योगदान नहीं होता, परंतु प्रशासनिक संस्थाओं के कार्य संचालन में भी उनकी भूमिका रहती है। लोकतंत्र के देशों के प्रशासन में राजनीतिक दलों द्वारा रक्त संचार का कार्य किया जाता है। बहुत बार, कई बार कॉम्पिटेटिव क्वेश्चंस में आता है कि जो राजनीतिक दल हैं वो क्या काम करते हैं, ठीक है, तो रक्त संचार का काम, जैसे हमारे शरीर में ब्लड, ठीक है, वैसे आपके यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज काम करती हैं। तीसरा पॉइंट है प्रशासनिक संस्थाओं पर गैर राजनीतिक संगठनों का प्रभाव। सभी लोकतांत्रिक देशों में प्रेस, दबाव समूह और अन्य स्वैच्छिक संगठनों का प्रशासनिक संस्थाओं की कार्यविधि को प्रभावित किया जाता है। चौथा, प्रशासनिक संस्थाओं के बहुस्तरीय संगठन। भारत जैसे लोकतांत्रिक समाजवादी देश में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, फेडरल सिस्टम। यहाँ बहुस्तरीय प्रशासन पाया जाता है, ठीक है, मल्टी लेवलरी। पहला जैसे केंद्र प्रशासन, दूसरा राज्य प्रशासन और तीसरा स्थानीय प्रशासन, ठीक है, ये तीन प्रकार के शासन। अब बात करते हैं अगले मेन पॉइंट की, पांचवा, फिफ्थ, प्रशासनिक संस्थाओं पर जनमत का प्रभाव पड़ना। लोकतांत्रिक समाज में प्रशासन तंत्र जनमत की अधिक चिंता करता है, वह जनता के हितों के लिए संवेदनशील होता है। प्रशासकीय व्यवस्था जनता की उपेक्षा नहीं कर पाती है। जनमत के दबाव के कारण कई बार उन्हें अपनी नीतियों में बदलाव करना होता है, ठीक है। मान लीजिए कोई नीति प्रशासन के द्वारा बनी, अधिकारी ने बनाई और जनता को पसंद नहीं आई, तो वो उन पर प्रेशर डालते हैं और उस प्रेशर में, दबाव में वो अपनी नीतियों को, पॉलिसी को चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। अगला पॉइंट है नीति निर्माण और उसका क्रियान्वयन, ठीक है।
लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाओं द्वारा न केवल नीतियों का क्रियान्वयन किया जाता है बल्कि उनके द्वारा नीतियों के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो नीति बनाना, पॉलिसी मेकिंग, और फिर उसको लागू करना, क्रियान्वित करना, इम्प्लीमेंटेशन में काम करना, ये किसका काम हो गया? प्रशासनिक संस्थाओं का। ठीक है। अब अगला पॉइंट की बात करते हैं, 7वां। नौकरशाही की महत्वपूर्ण भूमिका बनी रहती है। जो शासन है, राज्य हैं, उसमें क्या है, ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कौन? ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही। लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में कल्याणकारी कार्यों का दायित्व नौकरशाही पर ही रहता है। उनके द्वारा सभी कार्य किए जाते हैं, इसलिए समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाते हैं। कोई भी काम हो, ठीक है, उनके व्यक्ति के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु के बाद तक, ठीक है, बिफोर बर्थ टू आफ्टर डेथ, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी है, ये आपके पब्लिक से जुड़ी रहती है, उनसे कांटेक्ट में रहती है। और 8वां पॉइंट है, प्रशासनिक संस्थाओं की भूमिका सकारात्मक होती है। ठीक है। लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाएं सामाजिक परिवर्तन का एक माध्यम है। यह सामाजिक न्याय की स्थापना करती है। समाज में जो भी है आपके अच्छा काम करती हैं, जो बुराइयां हैं वेल से उन सबको चेंज करती है, हटाती हैं, तो एक पॉजिटिव रोल अपना प्ले करती हैं। ठीक है। ये जो सेशन है वो हमने ज्योति विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के डिजिटल वर्जन 2.0 वहाँ से इसको तैयार किया है। आपकी कोई क्वेरी हो तो हमें बताइए, और आगे के सेशन आप देखते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।